इतिहास वो गाथा है जो बार बार गाई जाए, समय के साथ साथ कई बार दोहराई जाए, पन्नों में दबे चरित्रों को जीवित किया जाएगा, जिसमें सुरवीर और गुनहगार एक साथ नजर आएंगे. Welcome all. Today we will be discussing with you the fights related to water, land and forest. Through our research, we bring in front of you the struggles that some great personalities have went through. Once again, welcome each and every one of you present here, as well as I request you to kindly keep your phones on silent mode. Welcome to the show. Welcome, sir. Oh, thank you so much. Hi. Hello. आइए आइए हामिदोफ साहब. Yes. कैसे हैं आप? I'm fine. How are you? I'm fine too. Great. Please. Yeah. I'm Christoph von Führer-Heimendorf. I'm an ethnologist from Austria. I have a keen interest in history. History is a guide for the coming generations. It shows us what we lost and what we gained, and what were the struggles in achieving it from where to where. But if considered, there are certain aspects hidden in history. I think the root of the Babijari problem was land tenure. Land an tenure. outsider, yeah, an outsider, be it a Brahmin, a Muslim, anyone could obtain land lease, but a Gond couldn't. Before the official leases took over Kerimeri, it was a prosperous Gond village of about 100 houses, but no Gonds got its right. पर साहब पट्टा क्यों दिया जाएगा जब जमीन गोंडों की थी ही नहीं? असीफाबाद से 12 मील पश्चिम के एक जंगल में जहां गोंड नेता और उनके अनुयायियों ने 300 एकड़ भूमि हासिल की थी, फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार उस जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था. अवैध कब्जा 300 एकड़ भूमि. अरे ये 300 एकड़ ही नहीं, सारी जमीन सारे जंगल हमारे अपने हैं. तो कब्जा कैसा? पट्टा किसने दिया? इतिहास मेरा हो या आपका, सवालों के दायरे में आता ही है. अरे यही हमारे सारे दादा पुरखे गुजर बसर करके गए हैं. अधिकार हमारा है उनका. What I'm trying to say is, legally, a land should be owned by the people who lives there. जी. So here, the Gonds cannot be blamed completely. साहब आप इन गोंडों के बहकावों में मत आइए. जमीन उसी की है जिसका हक है, और उसने बहुत बार कोशिश की वहां पर खेती रुकवाने की, पर सब बेकार. मजबूरन संभागीय पुलिस अधीक्षक एक राजस्व अधिकारी के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं और वहां उन्हें आत्मसमर्पण करने को राजी किया. जमानत पर उन्हें रिहा किया गया, पर इन गोंडों की ऑडेसिटी देखिए कि नियत के दिन में भी वो अदालत में आने में असफल रहे. उसके उल्टे उन्होंने साजिश रचा, लोगों को इकट्ठा किया, हथियार इकट्ठे किए. किस लिए? गोंड राज की स्थापना के लिए. पुलिस और तालुकदार को गुस्ताखी भरे पत्र लिखे और उसमें मांगा क्या? 5 गांवों की जागीर और सभी वन बकाया माफ. अरे वाह, व्हाट अ नॉनसेंस. दैवीय शक्तियों का दावा करना, अपने अनुयायियों से कहना कि उस पर गोलीबारी का कोई असर ही नहीं होता. In a way, you're right. There are certain indications where Bhim claimed magical powers, but there is nothing extraordinary in this. Like every Gond village had someone called Bhaktal who Ji. claimed such magical powers and who claimed to go through such trance and samadhi kind of experiences. They all had common mental temperaments. But here, in Bhim's case, he possessed a great sense of leadership ability, character and intelligence. That's how he could arouse hundreds of people to actively fight against the forest officials, which ultimately led them to their involvement with the police also. However, I believe something has been done to his reputation as a religious leader. And one more thing, this idea or this far-reaching plan to establish the Gond Raj, that's a little confusing for me. साहब आप इन गोंडों से बड़े प्रभावित नजर आ रहे हैं. खैर, इस रिपोर्ट पर ध्यान देते हैं. उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने से पहले प्रभागीय वन अधिकारी और सिविल सर्जन के द्वारा एक कार्रवाई की गई. वो पास वाले क्षेत्र के पास वाले पहाड़ी पर जाते हैं और वहां पर डेरा डालते हैं.
वहां पर उन्होंने गोंड नेता से बातचीत करने की कोशिश की, पर गोंड नेता ने हमेशा अपमानजनक उत्तर दिए। उसके अगले दिन पुलिस 800 फीट पहाड़ी के ऊपर चढ़ती है और वहां क्या पाती है? 500 गोंडों की भीड़ हथियारों से लैस है। किस चीज के लिए? गोंड राज की स्थापना के लिए। उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, पर सब बेकार, कोई सुनवाई नहीं। इसी के लिए उस पर बल का प्रयोग किया गया और उस बल के प्रयोग में गोंड नेता मारा गया। उसके साथ 9 अन्य लोग मारे गए, 13 लोग जख्मी हुए और बाकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें क्या बुराई है? तो क्या गलत है न्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने में? ये सब लोगों की चीजें हैं। हमें इनकी तह तक जाना होगा। हमें समझना होगा कि उनका शोषण क्यों और किस लिए होता था। उनकी मां, बहन, परिवार कोई सुरक्षित नहीं था और इतनी मेहनत करने के बावजूद उन्हें भूख को तड़पना पड़ता था। और शोषण करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे लोग थे। इतना सब सहने से अच्छा है कि मरी क्यों ना जाए। What I'm trying to say is, जी, the primary motive of the Gonds and columns to fight against the forest officials is their resentment against them and the evacuation of villagers. There is something that I have heard from the days in between the burning of the village and the final firing of Bhim. The Gonds were morally supported by non-tribal outsiders who considered a fight between the Gonds and the government to be in their own interest. Like I said, you see, like you said, the Gonds. It is certainly exaggerating to say that the Gonds consider him a martyr or a tribal hero. Everybody who knew him personally greatly admired his character, his intelligence, his leadership abilities, and they all held the forest officials, especially the watchmen who are involved in the Devpur case, guilty. That's what I'm trying to say here. पर साहब आप ही तो उन्हें बड़े पर्सनली जानते हैं। So, do you also admire these people? No, I'm not here to make a. यार कोई बात नहीं, छोड़िए। इस रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए। खुद को गोंड राजा के रूप में पेश करते हुए और दैवीय शक्तियों का दावा करने वाले गोंड नेता 10 सितंबर 1940 को आसिफाबाद के गोलीबारी में मारे जाते हैं। दैवीय शक्तियों का दावा करने वाले गोंड नेता गोलीबारी में मारे जाते हैं। जिसने हमारे लिए कुछ किया हो, जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई हो, जिसने अत्याचार के खिलाफ लड़ना सिखाया हो, जिसने हमें बताया हो कि हम भी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, तो वो हमारा भगवान क्यों नहीं हो सकता? तानाशाही हुकूमत के खिलाफ लड़ना कोई आसान काम तो है नहीं। कितने लोग इसके खिलाफ लड़े और कितनों का विद्रोह दबा दिया गया। वहां पर भीम का भय बरकरार रहा। अरे उसका भय इतना था कि मुझे बंदी बनाकर रखा है इतने दिनों से। अच्छी बात है, डर होना चाहिए। अच्छी बात। अरे नहीं हूं मैं कुमरा भीम। कितनी बार बता चुका हूं तुमको कि मेरा नाम कुमरा भीम नहीं है, मैं सूरू हूं, सूरू। जिसे तुम ढूंढ रहे हो मर चुका है जोड़े हाथ में। अरे खुद ही तो अपने हाथों मारा था उसे। मुझे पकड़ कर ले आए, इतने दिनों से यहां बंद करके रखा है, क्योंकि तुम डरते हो। मैं डर है कि कहीं वो वापस ना आ जाए, इसलिए तो मारने के बाद जला दिया था उसे। पर तुम्हारा ये डर बरकरार रहेगा। वो आएगा, जरूर आएगा, किसी ना किसी रूप में वो आएगा, जरूर आएगा। किसान भाइयों, इस जंगल में जीवन गुजर बसर करने वाले कोल्लम, पट्टादी, मजदूर भाइयों सभी सुनो। हमारे पास खुद की जमीन नहीं है, हम दूसरों की जमीन बटाई पर लेकर खेती करते हैं, अपना जान जोखिम में डालकर जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करते हैं। इतना सारा अनाज उगाते हैं, लेकिन हम ही लोग भूखे मर रहे हैं। ये लड़ाई अब छोटी नहीं है, वो लोग फिर से आएंगे, चारों तरफ से आएंगे। हुकूमत अपना पूरा खजाना फूंक देगी हमें पकड़ने के लिए। लड़ेंगे, जो नहीं करना
అడవిలో బండల్లో కొడవలి బట్టి కష్టపడుతుందో వాళ్ళ కష్టం ఫలం వాళ్ళకే దక్కాలి. వాళ్ళు మాత్రమే నిలబడతారు. ఇవన్నీ మనకు దక్కాలంటే మనం రాజ్యం తెచ్చుకోవాలి. పోరాటంలో ఒక మనిషి చనిపోతే ఒక తల్లి ఒక బిడ్డను కోల్పోతుంది, ఒక తండ్రి ఒక కొడుకును కోల్పోతారు, ఆ కుటుంబం తమలోని ఓ వ్యక్తిని కోల్పోతుంది. కానీ వీళ్ళు లడాయిలో కార్చిన నెత్తురు రక్త సిక్తమైన మన భావితరాల గుండెల్లో నగార మోగిస్తూనే ఉంటుంది. जो खेतों में हल चलाते हैं, जिसकी भाई हथियार लेकर खेतों में मेहनत करती है, उसके मेहनत का फल उसे ही मिलना चाहिए. हुकूमत जिसके साथ होती है, इंसाफ उसके साथ चलता है. आज हुकूमत नवाब सरकार के हाथ में है, इसलिए वो हमें इधर से उधर से इधर भगा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं. এই যুদ্ধে যদি আমরা জিতে বেঁচে ফিরতে পারি তবে তো ঠিক আছে, কিন্তু যদি হেরে যাই তো, যদি মরে যাই তো আমরা কেন হেরেছি সেই সত্য এবার সামনে আসা প্রয়োজন. আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সেই সত্য এবার বলতেই হবে. এই রাজার অত্যাচারে অন্যান্য যারা অত্যাচারিত হয়েছে এই লড়াইয়ে আমরা তাদের আমাদের সাথে নিইনি, আর তাই আমাদের যা কিছু আছে, যা যা হাতিয়ার আছে তাই নিয়ে সকলে একত্রে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে. Where did it happen? Why did they want me to study about guns? How long? And how many people? What was the reason? এই যুদ্ধে भाभी बकरी चराते समय कितने ही सांपों से पाला पड़ता है, और धामिन तो सबसे डरपोक सांप इसी से डर गई. अरे किसी दिन जंगली जानवर से पाला पड़ गया तो क्या होगा? हाँ ठीक है ठीक है.
मैं माँ से सुना है तू अलग गृहस्थी बसा रही है। हाँ। झोपड़ी में माँ बाबूजी देवर सब लोग एक साथ रहते हैं। पानी बारिश से तो बिना भी रहना मुश्किल हो जाता है, इसमें भला कैसे गृहस्थी बिताएंगे। हाँ, गृहस्थी के बाद सही है, परंतु घास पट्टी लकड़ी पट्टी अगर ये नहीं देंगे तो चौकीदार झोपड़ी नहीं जला देगा। और तुम ही बताओ बहन, पूरा जीवन नहीं तो दिशाहीन है। सारी मेहनत हाथ में नहीं आती और हाथ में आती तो मुंह तक नहीं पहुंचती। और इसका लगान चुकाने में तो पूरा जिंदगी गुजर रही है। और सुन, गृहस्थी बासना कोई मामूली काम नहीं है। और हम लोग भला कहाँ जाएंगे, इधर ही तो रहेंगे, अपनी झोपड़ी के बगल में ही रहेंगे। अरे हम लोग साथ साथ ही रहेंगे। अच्छा, खुशी बादल बादल खुशी भाभी, इन सुअरों को ना भगाओ तो पूरा खेत बर्बाद कर देंगे। चल भाभी, तू जल्दी चल। भाग। जोर जोर मालिक, इतने दिन से तुम्हारा मुंह नहीं था, जब हम लोग सामने आए तो जोर जोर कर रहा है, पीठ के पीछे छुरी तेज करता है। पटोरी साहब ऐसे मत बोलो, हमसे क्या गुनाह हो गया? गुनाह? बहुत बड़ा गुनाह हुआ है तुमसे। इनको जानते हो? ये है सिद्दीकी साहब। जोहर जोहर मालिक। भाभी, देख सुअर, वो देख जंगली सुअर, एक हमारी फसल बर्बाद करते और दूसरे हमें। इनको तो मार डालना चाहिए। ये जमीन तुम लोगों ने साफ की है? हाँ मालिक। हाँ तो सुनो, यहाँ से लेकर केरी मेरी तक जमीन इनके नाम पर है। तुम लोगों को महसूल देना होगा। महसूल? हाँ। हम क्यों देंगे अपनी जमीन का महसूल? हम नहीं देंगे। हम नहीं देंगे। मालिक, ये जंगल हमने कटक मिट्टी किया, अब तो किसी का जमीन नहीं था मालिक। और यार ये पहले फसल हमारा घर तक नहीं पहुंचा मालिक। बिल्कुल, ये हमारा जंगल था। हाँ। सब अपना था। हाँ। अब फसल काटते थे, हम उगाते थे। इस जगह का राजा कौन था? राजी गौड़। बिल्कुल। फिर एक दिन भर में ये गोले लगा गए, अब फिर जगह शुरू हो गया। अब फिर एक हो गया, अब मुझे नहीं पता। मैं वसूल नहीं दूंगा, मैं वसूल क्यों दूं? मैं नहीं वसूल दूंगा। और जंगल काटकर हल चलाकर हमने फसल तैयार की है 6 महीने में। हमने सर्दी गर्मी बरसात नहीं देखी, खून पसीना एक करके फसल तैयार की है, गोडेम बनाया, झोपड़ी बनाई, जंगल काट कर साफ करके खेत बनाए, और अब तुम लोग आकर हमारा बट्टा बोल रहे हो। ये क्या बात है? हिस्सा दे दो। जब यहाँ कुछ नहीं था तब तो ये लोग आए नहीं। अब ये कहाँ का न्याय है? अरे कान खोल के सुन लो, तुम लोग ऐसा काम करोगे हमको सपना आएगा। तुम लोगों ने जंगल काटा, अनाज उगाए और हमें महसूल भी नहीं दोगे। अरे सोच रहा हूँ, जानवरों से तो खूब लड़ते हैं, पर इन इंसानों से क्यों डरते हैं? जंगली जानवर तो है, लड़ेंगे,
लड़ेंगे तो मरेगा और मरेगा तो पिया जाएगी। मालिक, परसों ही तो एक आदमी आया था, आप ही के नाम पर हमने उसको मसूल किया। बहुत बड़बड़ सुन ले। ए सुनो, सारा अनाज जब्त कर लो, जो मिले भेड़ बकरी मुर्गे जो ठीक रहे नहीं। सब उठा लो। अन्ना तो है, लेकिन इससे लड़ने के लिए हिम्मत है। मेरे घर में घुसता है मालिक। आप ऐसे नहीं कर सकते मालिक, ये अनाज उगने के लिए हम लोग कितना तकलीफ उठाया मालिक, कितनी मेहनत की मालिक। या अल्लाह, सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी साहब, मैंने नहीं मारा इसे, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। भाभी बोलना, मैंने नहीं मारा इसे, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा इसे। अरे अब क्या होगा? अब और क्या होगा? जंगलात वाले आएंगे, सारे गुड़म को जला देंगे। अरे वो हम सबको मार डालेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे वो। अब तेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तू यहाँ से दूर चला जा। दूर चला जा। भीम क्यों दूर जाएगा? मेरी बात मानो, इसको यहाँ रुकना ठीक नहीं है। भीम तू जल्दी यहाँ से दूर चला जा। नहीं, अगर भीम जाएगा तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। तुझे यहाँ जरूरत है। भीम तू जल्दी भाग जा यहाँ से। अरे सुन, इस पर इतिहास मुखर है, इस पर इतिहास मुखर है। एक चुप्पी है सन्नाटा है, एक चुप्पी है सन्नाटा है। इस पर इतिहास मुखर है, इस पर इतिहास मुखर है, इस पर इतिहास मुखर है, इस पर इतिहास मुखर है। लुटेरे कभी नहीं आए, कभी लूट का उत्सव नहीं मनाए। वो ना गए ना वो आए, उन्हें अपने बीच ही पाए, उन्हें अपने बीच ही पाए, उन्हें अपने बीच ही पाए। इस पर इतिहास मुखर है, इस पर इतिहास मुखर है, इस पर इतिहास मुखर है, इस पर इतिहास मुखर है। हमने ही सोया हर बार हमेशा, हमेशा भटके जंगल जंगल। एक चिंगारी से गांव जल गया, छूट गए सब बंधन। नजर की ठोकर, भूखे प्यासे, छूटा बाबा भी का आंचल। नजर की ठोकर, भूखे प्यासे, छूटा बाबा भी का आंचल। खास मित्र का हाथ काम कर भी मिलिए दामन में अब, खास मित्र का हाथ काम कर भी मिलिए दामन में अब। पहुंचा मुखासी के पास, पहुंचा मुखासी के पास, पहुंचा मुखासी के पास। पर हाथ जो रही वो थी निराशा, हो गई भाग्य विधाता।
क्या हुआ? काम पूरा हो गया? हाँ अखबार पहुंचा दिए? पहुंचा दिए। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। हाँ है? कुछ लोग मुझे घूर रहे थे। तुझे कितनी बार बताया है मेरे बताए गए रास्ते पर ही जाया कर, ना उससे एक कदम ज्यादा ना उससे एक कदम कम। और हाँ, पकड़ा जाएगा तो क्या जवाब देना है मालूम है ना? मालूम है। शाबाश, एक ही महीने में तू बहुत कुछ सीख गया है। मुझे आज भी याद है जब पहली बार मैं तुझे स्टेशन पर देखा था, तू मुझे काम का व्यक्ति लगा था, इसीलिए मैं तुझे अपने काम पर रख लिया। एक और अच्छी खबर देनी है। क्या? तेरे साथी को बल्लर शाह पहुंचा दिया गया है। अच्छा, अब तक तो वो अपने गुड़े में भी पहुंच गया होगा। पता नहीं सब लोग क्या कर रहे होंगे, किस हाल में होंगे। माँ, भाभी, बोजू भैया, मुझे घर की बहुत याद आती है। क्या तू घर जाना चाहेगा? हाँ। जा जा अपने घर। सरकार के आदमी तुझे ढूंढ रहे होंगे। सरकारी आदमी की हत्या करके भागा है ना तू। कॉन्डल ने मुझे सब कुछ बता दिया। पर सुन, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जो तूने किया वो बिल्कुल ठीक किया। ये घोड़े अत्याचारी होते ही मारने के लिए है। ये जमींदार, पट्टेदार, सहकारी हम मासूमों पर ऐसी जुल्म ढा रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। तो जो तूने किया वो बिल्कुल ठीक किया। और सुन, हमें अत्याचारों के खिलाफ लोगों को जगाना है, और इस लड़ाई में हमको तकलीफें होंगी, यातनाएं मिलेंगी, गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, यहाँ तक कि फांसी पर भी चढ़ा देंगे। बस जिल्लत भरी मौत से बेहतर है कुछ करके मरो, ताकि मरना व्यर्थ न जाए। आपको डर नहीं लगता? डर? डर कैसा? मेरे पास तो पाने को कुछ है ना खोने को। मैं अपनी कलम के साथ जीता हूं, और मेरे डर की बात कर रहा है। सरकारी आदमी की हत्या करके भागा था, तुझको डर नहीं लगा था? हाँ, मेरे पास ही क्यों आया? सुन रहा है? अब इसमें क्या देख रहा है? देख रहा हूं इसमें क्या लिखा है। रोज बरोज नया नया कुछ छपता है। लोग आते हैं, लड़ाई की बात करते हैं, कभी पर्चों की बात करते हैं, पर मुझे समझ नहीं आता आप लोग ऐसा क्या काम करते हैं। यहाँ की हुकूमत के खिलाफ, लोगों के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। लड़ाइयों के बारे में, वो कहाँ कैसे लड़ी जा रही है उन्हीं के बारे में। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो आंदोलन हो रहे हैं उन्हीं के खिलाफ हम लोग लिख रहे हैं। वो कहाँ कैसे कब किए जा रहे हैं, और इन्हीं खबरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है भीम, और उस लड़ाई में सबका अपना तरीका है और सबकी अपनी सोच है। ये अखबार, ये मेरा तरीका है, उसमें लिखे शब्द मेरी सोच है। पर छोड़, तू अपने काम से काम रखा कर। लड़ना जरूरी है क्या? लड़ना क्यों नहीं है जरूरी? लड़ना बिल्कुल जरूरी है। ये जो शोषण और अत्याचार हो रहे हैं इनके खिलाफ तुझे आवाज उठानी जरूरी है, सवाल करना भी जरूरी है, जवाब देना भी जरूरी है। तो क्या मैं इसके खिलाफ लड़ूं तो लड़ सकता हूं? क्यों नहीं लड़ सकता है? ये जुल्म और शोषण हो रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल दे सकता है, पर उन्हीं के तरीके से दे सकता है। और इसके लिए तुझे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा? मुझे पढ़ना आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? जब मन में ठान लेगा तो कुछ भी कर सकता है। तो मैं पढ़ूंगा बिठोबा, मैं जरूर पढ़ूंगा। पढ़ेगा? हाँ। फिर आज से शुरू करेंगे? जी। चल चलिए। हिंदी से शुरू करेंगे। हाँ। विठोबा जी, विठोबा जी, उठ, पर्चे देखे, पर्चे देखे। इधर आ, सुन, इसमें ढूंढ, ढूंढना जल्दी। ये नहीं है। ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। अच्छे से देख ना।
यही तो है। शाबाश। नेता वह है जिसका नेतृत्व प्रभावशाली हो, जो अपने अनुयायियों से सदैव आगे रहता हो, जो ईमानदारी के साथ शांतिपूर्ण साधनों से उद्देश्य पूरा करने के प्रयास को ही अहिंसा कहते हैं। शाबाश, ऐसे ही और भी भाषाएं सीखनी है तुझे, अंग्रेजी, उर्दू। अब भाषा सीख ली, अब अपना तरीका चुनने की बारी है। और तेरे पास सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक हिंसा का मार्ग और एक अहिंसा का मार्ग। अब तुझ पर निर्भर करता है कि तुझे क्या चुनना है। चल जा। विठोबा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आपके लिखे लेख लोगों में जागरूकता फैला रही है, लोग आपसे जुड़ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मेरे शब्द और मेरी कलम भारत क्रांति की लहर ला रहे हैं। मैं हमेशा से यही चाहता था, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूं जो हिंसा में विश्वास रखता है। मैं सामने से लड़ना चाहता हूं। लेकिन विठोबा, एक दिक्कत है। कुछ कुत्तों को आपके काम की भनक लग गई है। मुझे लगता है कि आपको कुछ दिनों के लिए काम रोक देना चाहिए। मैं क्यों अपना काम रोक दूं? मैं नहीं रोकता, मेरा काम जारी रहेगा। विठोबा, लोगों को आपकी जरूरत है। इस देश को मेरी जरूरत है। सुनो, अंदर से पीले पर्चे को झंडा लाके दो इसे। और तुम सुनो, ये पीले पर्चे उन लोगों के बीच में फेंकना, ताकि उनको हमारी वंशा के बारे में पता चले। और उनसे बोलना वहां से डर के भागे नहीं। ये लो पत्र का जवाब। जरूर। पकड़ो इन दोनों को। और देखो कोई और भी शामिल है क्या? मैंने कुछ नहीं किया। विठोबा, मैंने कुछ... मुझे बहुत पहले से शक था, यहाँ पर कुछ तो चल रहा है। चलिए। विठोबा, मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ किया है या नहीं किया है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसी समस्याएं जीवन में बहुत सी आएंगी, अकेले सामना करना पड़ेगा। अब तुझ पर निर्भर करता है कैसे सामना करेगा। लेके जाओ इन्हें। बोल ललिता तो कहते कि
जंगल हमारा है, ये जानवर हमारे हैं, यहाँ की सारी संपदा हमारी है। ये पराये देश वाले आकर हमारी संपदा को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ये बात मैंने नहीं, रंपा विद्रोह के नायक मन्यम वीरू हमारे सीताराम राजू ने बोली थी। सीताराम राजू? हाँ, अल्लूरी सीताराम राजू। सीताराम राजू सब जवान छोकरों को इकट्ठा करके लड़ना सिखाता था। लाचारी भरी जीवन नहीं जीना है, 4 लोगों के काम आ सको जीवन ऐसा होना चाहिए। उसने औरों के दुख को अपना दुख समझा, लोगों को गले लगाया। आदमी की तरह जीना है तो लड़ना होगा, लड़ने के लिए लड़ाई सीखनी होगी, नहीं तो जानवर की तरह जंगल में कीड़े मकोड़े खाकर जिंदगी बेकार हो जाएगा। और ऐसा बेकार जीवन हमें नहीं चाहिए। ये हरामी कन्हैयालाल किधर है? यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, ये बदमाश कन्हैयालाल किधर है? कन्हैयालाल नहीं है यहाँ। अरे बचाओ रामू, बचाओ। अरे कहाँ ले जा रहे हो उसे? इसने चोरी की है और इसको सजा मिलेगी। अरे साहब हम चोरी नहीं की है। अरे नहीं हम चोरी नहीं किए साहब। चलो काम पे लगो, तुम लोग सबका टाइम आ गया है। ये लोग तो बहुत ताकत वाले हैं। नहीं साहब, हम सब लोग मार डालेंगे। कुछ नहीं किया तब भी ये मार डालेंगे। हम लोगों को मिलकर लड़ना होगा, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। मार डालेंगे। ऐसे कैसे मार डालेंगे? कह रहे हो क्या? इस संसार में सुखी जीवन जीने वाला एक दिन नरक में जाता है। ये नरक है, लेकिन निराश नहीं होना। निराशा आदमी को तोड़ देती है, आशा उसे जीवन देती है, बल देती है। इस निराशपूर्ण जीवन में मैं तेरे साथ हूँ और तू मेरे साथ है। तू इन दिनों से इन लोगों को भड़का रहा है। अब तक हमने मजदूरों को मारा ना। देखो
क्या रे भीम, भाभी, ये क्या हाल हो गया है तेरा? कितनी दुबली हो गई है। अब अच्छा तो है ना? अच्छा क्या है, देख तो रहा है ना। बस अब मौत ही नहीं आती है। यहाँ से जाने के बाद तू तो अच्छे से जिंदगी जी रहा है। हम लोग तो तेरे आने के आस चढ़ गए। बस ये आदि हमेशा रट लग रहती है, मेरा बेटा जरूर आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा। अरे मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं आएगा तो किसके पास जाएगा रे? हेलो, क्यों है तू भी? इस जंगल में क्या है? किस लिए आए है तू? माँ, बोजू भैया कहाँ है? इसी गुड़े में कोई बेटा और बेटी है। अगर तू तेरे भाइयों के साथ रहते तो तेरे को भी बच्चे होते हैं ना। अच्छा वो छोड़, कहा कैसे जिया था इतनी साल? हाँ कहा दी भीम, कहा दी? हाँ भीम, बोजू भैया, कहाँ था इतने साल? ए माँ, देखना अपना भीम कितना बड़ा हो गया। तेरे जाने के बाद हमने बहुत तकलीफ उठाई रे। किसी तरह पेट चल रहा है बस। एक बात बता, कहाँ था तू इतना साल? हाँ यहाँ से भागने के बाद मैं महाराष्ट्र गया, आज चांदा, वहां मुझे एक आदमी मिला, विठोबा, कारखाना था। उसने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। भाभी, मैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू भाषा जानता हूँ। और उसके बाद में गया चाय पत्ती के देश असम, और वहां मुझे मिला मन्ने दौरा। मन्ने तोरा? हाँ, मन्ने दौरा ने माँ मुझे अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में बताया। अल्लूरी सीताराम राजू कहता था कि कीड़े मकोड़ों से जीवन नहीं जीना है, इंसानों का जीवन जीना है, और इसके लिए लड़ना होगा। पर वो लोग हार गए। मुझे तुम सब लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं घर चला आया। कोंडल कहाँ है? अरे वाह रे मेरा भीम, तू तो कितना देश घूम कर आया रे। बाहर घूम कर आया और घर वापस भी आ गया। ए, मैं जाता ना, मैं वापस नहीं आ पाता। बैल गया, बकरियां गई, खेती बाड़ी गया, जमीन गई, बस ये हाथ पर ही बचा है अब। और ये बच्चे लोग क्या माँ जी हमेशा गिरते रहते हो, क्यों बाबा? इतना बार बोला, इतना बार बोलती हूँ मैं। अच्छा भाभी, छोटे बापू लोग कहाँ है? छोटे वो लोग कभी भी खेती कर रही है पगेड़ी में। और येसु तो जंगल काट के खेती तैयार करके कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। हमें भी वहीं बुला रहा है, तो हम लोगों को तू परेशान मत हो। लच्छू पटेल अच्छा आदमी है। हाँ, गांव के आधे से ज्यादा लोग वहां पालेर लगे। मैं एक काम करता हूँ, भैया से बात करके तुझे भी वहीं पालेर लगा देता हूँ। हाँ लच्छू पटेल? हाँ, पर उसके पहले मैं छोटे बापू से मिलूंगा, पता नहीं किस हाल में होंगे। इस बार सब लोगों को मिलकर हल चलाना है, ऐसी तगड़ी योजना बनाना है कि कोई हमें यहां से भगा ना सके। ये लक्ष्मी का क्या काम करते हैं, हाँ, ताकि यहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में समझ में आए। फिर से गिर गया, ये क्या बोलते हो? मत चलो, मत तू ये सब छोड़ भीम,
चल तो मैं तुझे गुडेन घुमा कर लाता हूँ। पता है तेरे जाने के बाद ना गुडेन बहुत बदल गया रे भैया। चल भाभी भैया की शादी हो गई, मेरी भी करा दो। ए बाबा तू चुप हो जा तो बाबा। अबे ऐसे मत कर तो हाँ दिन शादी। अबे अरे बाबा तू चुप हो जा तो बाबा। अरे मत करा तो बाबा। क्या हुआ? कुछ नहीं। चुप हो गए। बताओ मुझे। जब मैं लच्चू पटेल के काम से अमीन के पास गया तो उसने मेरी बड़ी आव भगत दी, इज्जत दी। बोला कि लच्चू पटेल के ऊपर लगा केस खत्म हो जाएगा और बोला कि लच्चू पटेल को एक बार मिलने के लिए भेजो। लेकिन वही जब मैं अपने लोगों के काम के लिए गया तो उसने मुझे धक्का मार के निकाल दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? अब सब समझ में आ रहा है। उसने सोचा होगा कि सारे गोंड लोग लच्चू पटेल की बात मानते हैं। अगर वो अपने वश में हो गया तो सारे गोंड लोग भी हाथ में आ जाएंगे। तुम खुश तो हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। जिसका पति इतना समझदार और होशियार हो, वो खुश कैसे नहीं होगी? और शादी भी कितनी धूमधाम से हुई। 5-6 बैलगाड़ी भरकर बाराती आए, 5 चोली जोड़ी कपड़ा आया, सब बहुत अच्छे से हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है लच्चू पटेल ने हमारी शादी में इतना खर्चा क्यों किया था? मैंने उसकी 12 एकड़ की सोने उगलने वाली जमीन छुड़ाई थी। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। क्या शोर हो रहा है इधर? कुछ नहीं भाभी। वो भाभी, मैं तुमसे एक बात कहनी है। बोल। शादी में सब लोग आए और छोटे बाबू लोग नहीं आए। वो लोग तेरे जैसे नहीं है ना। किसान लोगों के लिए खेत से हटने वाला दिन नहीं है ये। और तू भी तो तेरा भाइयों के रास्ते पे चल रहे है। यही पर रहेगी क्या? कम से कम तू तो हिम्मत देखा। तेरा बाप पटेल था और तुम लोग कभी लच्छू पटेल के उधर पाले हो, इसीलिए ना अपने बाप का बेटा नहीं कहना पा रहे हो। हाँ, अपनी कोल जैसा भी बीत जाए कोई परवाह नहीं है। कम से कम अपने बच्चे को तो पालन मत बनाना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं जीना आप गुलामों की जिंदगी। और हमारे बच्चे किसी के पालेर बन के नहीं जिएंगे। तू मेरे पास आ। मैं तुझे बोलती हूँ उसको कैसे संभालना होता है। मिठाई वाला मिठाई
इतना दिमाग दिखा रहा है, चल साथ तुझे बुला रहे हैं। अरे पकड़ के ला उसको। किसी लड़की को भागते हुए देखा क्या? नहीं। देखेगा तो बताना। चल चलो। ये लोग चले गए, अब बाहर निकल और अपनी गांव चली जाओ। निहात भले आदमी हो, अभी कहाँ जाऊं बता। मेरे गांव के सारे लोग चले गए हैं। तेरा नाम क्या है और तू कौन से गांव से है? देवड़म से। मेरा नाम कुमरम भीम है। तू वही कुमरम भीम है ना जो जयपति देव से बहुत कुछ सीख के आया है? कह सकते। अच्छा ये सब छोड़, अभी तो मुझे अपने गांव लेके चल, नजदीक ही है ना। कल सुबह मैं किसी और के साथ अपने गांव चली जाऊंगी। तुम्हारे लोग परेशान नहीं होंगे? मेरा कोई नहीं है, मैं अपने छोटे बापू के पास रही हूँ। पर साल माँ बाबूजी भूख की बीमारी से चले गए। ए भीम, तेरी शादी हो गई? हाँ। मेरे से भी शादी कर लेना। चलो। कौन जानवर है बच्चे तोरा की सुनो, आगे तुम कितना समय लगा दिया? क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक छोटी बहन लाया हूँ। अंदर चल। ऐसे थोड़ी होते अंदर निकल। सब बर्बाद हो गया ना भीम। बाबेजारी में बड़े गुड़े वाले अपने लोग सारे भूख से तड़प रहे हैं भीम। अपनी आंख के सामने ही अपनी झोपड़ी को जलकर राख होते देख हर कोई रो रहा है भीम। बच्चे बूढ़े
सबको इतना बेरहमी से मारा उन्होंने, पता नहीं मार मार के क्या हालत कर दी होगी। भीम, जंगल में चारों तरफ आग लगी हुई है और हम लोग बीच में खड़े हैं। तेरे को पता है कि हम लोगों ने नई गुडेम बसाया है, जंगल काटा है। जंगल वाले आएंगे सोचे थे भीम, वो आ ही गए। वो जो कुछ सोच कर आए थे वो करके चले गए। अब हम सबने कल बैठकर बात की और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये बात सरकार के पास लेकर जानी होगी। हमें कोर्ट कचहरी कुछ नहीं पता है, अब तू ही है जो हमारा साथ देगा। भीम, भीम, मेरे 5 बेटे हैं, 5 पांडव की तरह। तेरे बिना मेरे बेटे आग में जलकर मर जाएंगे। भीम, तेरे को हमारे पास आना है, अपने को जमीन जीतना है। भीम, ये तुर्कों का राज हमें गोलमाल कर रहा है, हमारे साथ कोई भी नहीं है। हमें ये कानून वानून कुछ नहीं पता है। तू साथ खड़ा रहेगा तो ये सारे गुडेम वाले साथ खड़े रहेंगे। तेरे को हमारे पास आना होगा बेटा। तेरे को मैं मेरा छठवा बच्चा बन रहा हूं। तू आएगा ना? बादल भी गरजते हैं माझी, बिजली भी चमकती है माझी। बादल भी गरजते हैं माझी, बिजली भी चमकती है माझी। गाए गाए लूना गाए और रात अंधेरी है माझी, बुझता है मन का दिया माझी। आकश्ती तेज चला माझी, आकश्ती तेज चला माझी, आकश्ती तेज चला माझी। मंजर पे उदासी छाई है, आकाश का चेहरा उतरा है। मंजर पे उदासी छाई है, आकाश का चेहरा उतरा है। नदी की लहरें कहती है तूफान गिराने वाला है, तेवर बदले है फिजा माझी। आकश्ती तेज चला माझी, आकश्ती तेज चला माझी, आकश्ती तेज चला माझी। Then what happened? उसके बाद भीम से अपने चाचा, अपने भाइयों की हालत देखी नहीं गई। वो भी उनके साथ जाना चाहता था, इसलिए वो चला गया सीधे लच्छू पटेल के पास। लच्छू पटेल? Who was लच्छू पटेल? लच्छू पटेल उस गुडेम का पटेल यानी मुखिया था, जिसके यहाँ भीम और उसके परिवार वाले पालेर का काम करते थे। What did he say? Did he just leave him like that? लच्छू पटेल बाकियों जैसा नहीं था। हाँ, भीम ने उसकी जमीन छुड़ाने में मदद की थी, इसलिए वो चाहता था कि भीम उसके पास ही रुके। लेकिन अब बात भीम के परिवार और गुडेम पर थी, इसलिए ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं की। इतना कहा कि भीम, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर ये लड़ाई जीतना इतना आसान नहीं है और तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बेहिचक मुझे बता सकते हो। और इतना ही नहीं, जाते जाते उसने भीम को कुछ पैसे भी दिए थे। चल वक्त की लहरों से आगे पहुंचा दे जमाने से पहले, चल वक्त की लहरों से आगे पहुंचा दे जमाने से पहले। उस पार पहुंचना है हमको तूफान के आने से पहले। है तेज बहुत धारा माझी, आकश्ती तेज चला माझी, आकश्ती तेज चला माझी, आकश्ती तेज चला माझी। उस पार हमें है चलवा। ये तुम लोगों ने क्या किया? सब बर्बाद कर दिया। साहब, इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, एकदम खड़ा रह के बात करना। हम लोग यहाँ नाचने को नहीं आए हैं, पंचनामा करने आए हैं। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुने तो एक एक को भून दूंगा, समझे? बाप रे,
कितना जंगल काट डाला रे? क्या बोलना चाह रहे हो? अरे बोलना क्या चाह रहे हैं? हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? हमें गोली मार दोगे, हमें कैद कर लोगे। हमने कोई गैर कानूनी काम थोड़ी किया है। जंगल को काट के उसमें खेती कर रहे हैं। जो कुछ करके देख सकते हो करके देख लो। ये लोग पापी है पापी। बच्चे बेटी डाल चूल्हे को हाथ लगे थे। देखो तुम लोग सुनो, ये लोग बस पंचनामा करने आए हैं। इन लोगों को कुछ कह के कोई फायदा नहीं है, और देखते रहो क्या होगा। तुम लोग कहो तो मैं बात करूं? कर ले। सारा तुझको अकल नहीं है किसके साथ कैसा व्यवहार करना है? सामने अफसर खड़ा है, थोड़ी तो इज्जत कर ले। कैसे देना हमको बताने, जो कहना है सीधा सीधा बात करो। देखो तुम लोगों ने जंगल काटा, सरासर कानूनी अपराध, और उसी के लिए हम लोग इतनी दूर से पंचनामा करने आए। अब देखो केस डालोगे तो अदालत जाओगे, जंगलात वाले बदनाम होंगे, हम लोग बदनाम होंगे। एक काम करो, जंगलात वालों को सीधा यही पैसा दे दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ पटवारी साहब, किसान को जमीन चाहिए, और जमीन के बिना किसान का पेट नहीं भरता। और जब देखो जमीन साफ करने के बाद नए नए पट्टेदार पैदा हो जाता है। उन लोगों को घूस देना हमसे नहीं होगा। आपको जो करना है करो। तो पंचनामा करेंगे, केस डालेंगे, फिर केस के पीछे दौड़ना। मैं तुम कोर्ट का दीवार हाथ में रहकर बात करो। तुम लोग पंचनामा करने आए ना, करो, केस डालो। हम कानून के हिसाब से ही जाएंगे। केस जीत गए तो ठीक, हार गए तो क्या होगा? जेल जाएंगे। जब देखो सारे अनाज भेड़ बकरियां इन साहूकारों के पास चले जाता है, और हम लोग इधर भूखे मरते रहते हैं। ये चोरी का काम आप मत करो, और हमें मत सिखाओ। हरामखोर! हमसे चोर बोलता है? हाँ बोलता हूं मैं, एक बार नहीं 100 बार बोलता हूं। तुम लोग नागल पन्नू, मंचको पन्नू, गुड़ी से पन्नू, गड्डी पन्नू, सारे पन्नू का नाम पर तुम लोग हमारे खून पी रहे हो। तुम ही चोर हो। हमको चोर बोलो। गोली लग गई। मुझे समझ में नहीं आता है, जब सब लोग मिलते तो अच्छी बातें करते हैं, जब सरकारी लोग आते हैं तो तुम लोग गड़बड़ क्यों करते हो? गड़बड़ हम लोगों ने क्या किया? माना कि उन्होंने किया, पर इसमें तुम्हारा क्या फायदा हुआ? आखिर चोट तो तुम्हें लगी ना। परवाह नहीं। सोचो कहीं और लगती तो। ठीक है, लाठी से लड़कर फायदा नहीं है। उन लोगों के पास बंदूकें हैं। राम जी गोंड ऐसे ही हार गए थे। अगर हम लोगों के पास बंदूक होते तो बंदूक बल्लाशाह में मिलेगा, चांदा में मिलेगा। लोहार और बड़े लोगों को बंदूक दिखलाए तो शायद वो लोग बना सकते हैं। कुंडल क्या कर रहा है? कुंडल को किसी तरह से बुलवाना ही पड़ेगा। हम किसी तरह से बंदूक बनवाना ही पड़ेगा। बंदूक बनवाना ही पड़ेगा। अरे थोड़ा आराम कर। जल है, जंगल है, जमीन है, सब कुछ रहने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ये धरती माँ हमारे गोंडों की भूख मिटाने की हालत में नहीं है। बस 2 हफ्ते और रुक जा, 2 हफ्ते और रुक जा, घाव भर जाने दे, वरना आज ही अकेला 3-4 को तो गिराई डालता। अरे देवर, तुझे दिखाई नहीं देता है? तेरा भाई हाथ में पट्टी बांध कर इधर से उधर घूम रहा है। इसको मारूंगा, उसको मारूंगा कह रहा है। समझ में नहीं आता है क्या? भाभी मुझे ज्यादा उकसाने की कोशिश मत करो। तुम जानती नहीं अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं क्या कर डालूंगा। तेरा गुस्सा तो मेरे तक ही है। जब जंगल वाले में निकल। हाँ अरे चुप रहो। तेरे रे लोगों के पास बंदूक है, और उनको कैसे मारते? लाठी से मारते। लाठी से मारेंगे। वापस रख उसको। लाठी से लड़ेंगे। रख, रख। खड़े क्यों समझते? कोई फायदा नहीं। बंदूक के सामने तेरे लाठी काम नहीं आएगा। रखो। हाँ तुरंत चक्रबली चले जाओ, जाके कुंडल को बुला कर लेकर आ जाओ। ठीक है। बाद में तुम्हें पता चलेगा क्या करना है। और तुम हाँ मधु को बुला कर लेकर आ जाओ। हमें लच्छू पटेल को पत्र लिखना है, और ये काम अकेले से नहीं होगा। हम में से गिरफ्तार किए बिना वो लोग नहीं छोड़ेंगे। और हम पत्र में लच्छू पटेल को लिखे कि राम राम लच्छू पटेल, हम लोगों ने मिलकर जंगल काटा है। ये बात आपको मालूम होगी। 1 हफ्ते पहले जंगलात अमीन गिरदावर और कुछ लोग पंचनामा करने आए हैं।
जमीन को लेकर झगड़ा हुआ और उस चक्कर में हमारे काका को, 2 भाइयों को और अन्य किसानों को पुलिस वाले हिरासत में ले गए। अब तुरंत जलगांव आसिफाबाद जाकर रामचंद्र राव भाई गाजी से मिलना है, मिलकर उन्हें कुछ छुड़वाना है। ये मदद आप जरूर करें, आपका कर्जा हम नहीं रखेंगे। मैं उठ सकने की हालत में नहीं हूँ, ये मदद आप जरूर करेंगे कहकर भरोसा है। पत्र पहुंचते ही जरूर निकले। आपका कुमरम भीम। उस पार हमें ले चल माही, उस पार हमें ले चल माही, फितरत को जा आजादी है। उस पार हमें ले चल माही, फितरत को जा आजादी है। कहते हैं जिसे रूहों का वजन, रूहों की जा आबादी है। रहती है जाना दामादी, कश्ती तेज चला माझी, कश्ती तेज चला माझी, कश्ती तेज चला माझी। उस पार हमें ले चल माही। उन सबको तो चिड़ियों की तरह भूंज के रख देना चाहिए था। जी श्रीमान। इस तरह मारते हैं, 2 दिन से खाट से उठ नहीं पा रहे हैं बेचारे। इस तरह हर कोई बागबात करता चला गया तो फिर सरकार का क्या होगा? और दूसरे गांव वाले, इतनी हिम्मत इन लोगों में आई कहां से? कानून के बारे में बात कर रहे हैं। कुमराम भीम वही है इनका रहनुमा। तुम जाकर के सारे गुडेम से वहां का हालचाल इकट्ठा करो। कोई बाहरी आदमी है क्या, पता करो। सरकार ने इन सब बदमाशों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं, गुडेम पर हमला करने के लिए नहीं। इसीलिए सोच समझ कर व्यवहार करना। जी श्रीमान। लेकिन इनको गिरफ्तार किया कैसे जाए? अमीन और जंगलात वालों ने जो नाम दिए वो 2-4 नाम से ज्यादा नहीं है, और कुमराम उनका रहनुमा है। कहते हैं उसको गिरफ्तार करोगे तो हम लोग चुप बैठेंगे क्या? जी श्रीमान। समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। वैसे तो ये गोंड लोग बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, जब तक कोई मुकम्मल वजह न हो ऐसा काम नहीं करते। जमीन का मसला ही खास वजह है। हम लोगों को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, वरना ये मामला संगीन होते देर नहीं लगेगी और इसके लिए भी निजाम सरकार फिर हमारे ऊपर उंगली उठाएगी। जहां तक हो सके इनको सोच समझकर कानून के बारे में बताने की कोशिश करो। मैं आज ही भूमि कानून को लोगों को समझाने के लिए फरमान निकालता हूं और जनगांव जिले और दूसरे आदिवासी प्रांतों में मुस्तैदी के लिए आज के आज ही आदेश देता हूं। गिरफ्तार हुए लोगों की जमानत के लिए अगर कोई भी सामने आए तो उसे तुरंत की तुरंत मंजूरी दो और उसे बताओ कि निजाम सरकार सबको समान रूप से देखती है। और जमानत पर छूटे हुए लोगों को यह भी समझाओ कि सरकार के खिलाफ नहीं जाना है और ये सारी की सारी बातें वो अपने अपने गुडेम में जाकर के अपने अपने लोगों से कहें। और हाँ, इतने सारे जंगल काट करके इन लोगों ने जो खेती की है इसकी रिपोर्ट भी हैदराबाद हेडक्वार्टर्स भेजो। जी श्रीमान। अब तुम लोग जाओ और इनकी मरहम पट्टी कराओ। रुको, इंक्वायरी बैठाओ उन तीनों पे। जी श्रीमान। बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़। कदम चाल तेज चलेगा, तेज चल। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1। According to this DGP report, the government tried to talk with him several times, but he only replied in abusive language. Was there even a letter? What's written on it? Was Bhim really not cooperating? जहापना, निजाम सरकार को 100 सलाम। हम लोग जनगांव जिले के घन्नौर इलाके के गोंड कोलाम हैं। बिना जमीन के हम लोग तकलीफ उठा रहे हैं। कहीं पर भी जाकर बंजर पड़ी जमीन को साफ करके खेती करते हैं तो पट्टेदार आकर खड़े हो जाते हैं। जंगल में रहने वाले हम लोगों के पास अगर जमीन ना हो तो जीना मुश्किल हो जाएगा। किसानों के लिए जमीन माँ के समान है। हम लोग अनाज पैदा करते हैं तभी तो पेट भरता है। जिसने कभी हल की मूठ ना पकड़ी हो, जिसने कभी जमीन की शक्ल ना देखी हो, ऐसे पट्टेदार लोग आकर हमारी जमीन पर अपना अधिकार जमाते हैं। उनके पास हजारों एकड़ जमीन का पट्टा है और हम जो मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी में रहकर अनाज पैदा करते हैं, हमारे पास जमीन ही नहीं।
हमारी जमीन पर उनका पट्टा कैसे? ये बात हमारी समझ में नहीं आती। जंगल में खेती करके गुजर बसर करने वाले हम लोग तहसीलदारी साहब, सूबेदारी साहब के सामने कई बार हाथ पांव जोड़े, फिर भी ये सब ध्यान नहीं दिए। और ये साहब लोग घूस लेने के बाद बोलते हैं खेती करो। और हमारे नवाब साहब से कितनी ही बार गुजारिश की हमें जमीन चाहिए, फिर भी ये सब अनसुना रह के हमारे ऊपर धावा बोले, तरह तरह का हंगामा कर रहे हैं, हमारे झोपड़ों को जला रहे हैं और हमारे खेती में जानवरों को हकाल रहे हैं। डाली काटने, पत्ते तोड़ने की जुर्म में हमारी उंगलियां काट रहे हैं और हमारे औरतों को बदतमीजी कर रहा है और हमारे बच्चों को मार रहे हैं। रहमदिल नवाब साहब, हमने जो 12 गांव बसाए हैं उसके पट्टे के लिए आपकी गुलाब आवाम आपसे गुजारिश कर रही। भीम, रघु, महदू ये अर्जी लेकर गए थे नवाब साहब के पास हैदराबाद। फिर क्या हुआ? उन्हें धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया गया। कहा गया कि चूतर पर चिंदी बांधने वाले नवाब साहब से मिलेंगे। इस बात का भीम को बहुत बुरा लगा। जिस वक्त ये लोग गए थे तब अमीन, पटवारी समेत कुल 26 लोग आए हमारे गुडेम में। बिना बात के सारे गुडेम में आग लगा दी, औरतों के साथ बदतमीजी की, बच्चों बूढ़ों को मारा पीटा, खेतों में जानवर हकाल दिए, अनाज, भेड़, बकरियां सब उठा कर ले गए। जब ये बात भीम को पता चली, वो आग बबूला होकर हमारे गुडेम की तरफ आया। सब सत्यानाश हो गया भीम। हमको मार डालते तो अच्छा होता। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते भीम। बच्चे, बूढ़े सबको मारा पीटा उन्होंने, हमारी झोपड़ियां जला दी और हमारी औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। अब और नहीं, अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनमें से छुटकारा दिलाने के लिए कोई नहीं बाहर से आने वाला है, हमें ही इनका मुकाबला करना होगा। 12 गांव के लोगों को इकट्ठा करना है, क्या करना है, कैसे करना है, बाद में तय करेंगे। पलको, तुम सारे औरतों को इकट्ठा करो, औरतें, बूढ़े, बच्चे सब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ और हमारे हथियार, बाला, बर्ची, तीर, धनुष सब तैयार करो। कोई पेशी पर नहीं जाए। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा कर थक गए थे नवाब साहब के पास, धक्का मार के बेइज्जती की। क्या कहा? चूतड़ में चिंदी बांधने वाले लोग, अब दिखाऊंगा चूतड़ में चिंदी बांधने वालों का नंगा नाच। हमें अपनी जमीन चाहिए, बिना जुल्म जाने वाला राज्य चाहिए। मावा ना दे, मावा राज। मानुष की मोटी चमड़ी से गई हरदम, मानुष की मोटी चमड़ी से गई हरदम। चिंता उसको ना थी शान, चिंता उसको ना थी शान। ना कहीं नाज़ूर थी और ना कहीं पुकार, ना कहीं नाज़ूर थी और ना कहीं पुकार। विद्रोही की थी शमशीर और थी यही तलवार, विद्रोही की थी शमशीर और थी यही तलवार। हर जगह पर खून है और हर जगह आंसू बिछे, हर जगह पर खून है और हर जगह आंसू बिछे। हर आदमी एक लाश है और हर जगह जिंदा, हर आदमी एक लाश है। और फिर जंगल सुलग उठा, जंगल में रहने वाली जनजाति जाग उठी। सारा जंगल अंगारों की तरह धधकने लगा। पहाड़ों पर रहने वाले पत्थरों को हथियार का रूप देने लगे। जोड़े घाट बना युद्ध का केंद्र। दुनाली तैयार की जाने लगी, भाड़ों बर्चियों पर धार तेज की जाने लगी। रात दिन काम चलता था। औरतें खाने पीने की तैयारी में लग जाती थी, दूसरे गुड़ों से फाल बीज ना जाता था।
गोफन, तलवारबाजी, लट्टबाजी, भाला वर्ची सीखने सिखाने की तैयारी चलती थी और हर गांव में लाल रंग का रगल झंडा लहराने लगा। हम सबका एक ही उद्देश्य था, मावा नाते महाराज। तुम ये लेटर लेके अभी कभी एसपी ऑफिस हैदराबाद पहुंचो। जी श्रीमान। मैं खुद वारंगल जाकर के सूबेदार साहब से मुलाकात करता हूँ। हर जगह आंदोलन चल रहे हैं, हर जगह पुलिस फोर्स कम पड़ रही है, सरकार के पास से फरमान पे फरमान आ रहे हैं और ऊपर से ये गोंड, इन गोंडों की बगावत खत्म नहीं हो रही है। जमीन का मसला ही खास मसला है। इनसे बात कर कर मिलना ही बेहतर होगा, लेकिन इनसे मिला कैसे जाए? जी श्रीमान, वो पहाड़ों पे रहते हैं। वही तो, और अगर हम लोग ऊपर गए तो वो और ऊपर चले जाएंगे। यही नहीं होगा, इस बार यही नहीं होगा। उन सबको तो गोलियों से भूंज के रख देना चाहिए। अगर हर कोई इसी तरह बगावत करता चला गया तो सरकार का क्या होगा? सरकार से नमक खाकर सरकार से ही नमक हरामी। जी श्रीमान। ये वकील रामचंद्र राव पैका जी ही गोंडों को भड़का रहा है। उस साले को तो फांसी दूंगा मैं, फांसी। लेकिन इन गोंडों से बचकर रहना चाहिए। मुझे याद है सीताराम, राजू और रामजी गोंड के रिवॉल्ट के समय ब्रिटिश सरकार तक को लोहे के चने चबाने पड़ गए थे, और फिर हमारी फौजें तो जमीनी स्तर और खाली मैदानों में लड़ सकती हैं, पहाड़ों और जंगलों में नहीं। अब तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। लेटर। अरे पकड़ो लेटर। ये भीम, तुम 300 लोगों की फौज हमला करने की तैयारी में है। जो ही कुर्दू उन्हें रास्ता दिखा रहा है। पहाड़ी के रास्ते कभी भी ऊपर आ सकते हैं। सुनो, सुनो, सब लोग सुनो। इन लोगों को किसी तरह से हम ऊपर नहीं चढ़ने देना है। रघु, तुम एक काम कर, तुम आदम की ओर चल जाओ, कुछ लोगों को लेकर जल्दी। ठीक है। नहीं नहीं, रुक जा मुत्तो, तुम कुछ लोगों को गोरीगुड़म चले जाओ। लो, लेकर चले जाओ। नहीं नहीं, हम साथ में ही रहेंगे, साथ में रहकर सामने से ही हमला करेंगे। कुछ लोग पेड़ के ऊपर चढ़कर देखो कि वो लोग किस तरफ से आ रहा है। किसी तरह से उन लोगों को जोरेगढ़ नहीं पहुंचने देना है। तीनों तरफ से घेरना है, तीनों तरफ से घेरना, तीनों तरफ। रामू, रघु, चिन्नू, मुत्तू, पैगो, सब लोग सुनो। हम सरकार से लड़ रहे हैं। हम अपनी आखिरी खून की बूंद तक लड़ते रहेंगे। पर हम जीत नहीं सकते। क्या जीत नहीं सकते? पर हम जीत नहीं सकते। मेरे दिल में और मेरे दिमाग में जो हलचल मच रहा है, मैं तुम लोगों को झूठ नहीं कह सकता हूं। मैं तुम लोगों को झूठ नहीं कह सकता हूं और तुम लोगों को भ्रमने में नहीं लग सकता हूं। हमारे तरह कई लोग लड़ रहे हैं। भील, संताली, मन्नेतरा, बिरसा मुंडा, रामजी गोंड, ये सब हमारे से बड़ी लड़ाई लड़ चुकी है, पर हार गए। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास हथियार नहीं है, बंदूक नहीं है, और हमारे पास भी बंदूक नहीं है। और हम इसी पठार में बंदी बनाकर रखा है। हम ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए। एक तरफ से राशन पानी कुछ नहीं मिल रहा है, और हम इधर भूखे मर रहे हैं। हारना अपनी मानूंगा मैं, चाहे पथ में शूल बिछाओ, चाहे ज्वालामुखी बसाओ, किंतु मुझे अब जाना ही है। हारना अपनी मानूंगा मैं, चाहे पथ में शूल बिछाओ, चाहे ज्वालामुखी बसाओ, किंतु मुझे अब जाना ही है। हारना अपनी मानूंगा मैं, चाहे पथ में शूल बिछाओ, चाहे ज्वालामुखी बसाओ, किंतु मुझे अब जाना ही है। तलवारों की धारों पर भी
हम इस लड़ाई को लेकर अपने होशियारी से 7 महीने लड़ चुके हैं और आगे भी अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ते रहेंगे और ये लड़ाई बेकार में नहीं जाएगा। हे धरती माँ, हमें ताकत दे, मावा ना दे, मावा राज। मन में मर प्यास जगाओ, रस की बूंद नहीं बरसाओ। मन में मर प्यास जगाओ, रस की बूंद नहीं बरसाओ। किंतु मुझे अब जीना ही है, जीना ही है, जीना ही है। किंतु मुझे अब जीना ही है। मसल मसल कर उड़ के चाले, अपनी प्यास बुझा लूंगा मैं, अपनी प्यास बुझा लूंगा मैं, अपनी प्यास बुझा लूंगा मैं। यही खड़े होंगे साहब, गंदा रहना। अरे कहाँ हो तुम सब? मैं जानता हूं तुम लोग यहीं कहीं हो। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। देखो, सरकार ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए ही भेजा है। अब इस तरह सबको अपना राज होना तो बोलो कैसे चलेगा? अरे तुम्हें गांव की जमीन का पट्टा ही चाहिए ना? तुम नीचे आओ, मैं तुम्हें लिख कर देता हूं। सुनो, हमें सिर्फ पट्टा नहीं, हमें हमारी 12 गांवों का हुकूमत चाहिए। बताओ इनमें से कौन है कोमराम? देखो, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। एक बंदूक की गोली कैप्टन के कंधे को छूती हुई चली गई और एक गोली में मदाली की जान चली गई। एक गोली रघु की जांघ में जाकर धंस गई और चिन्नू की बर्छी सिपाही के कंधों में उतर गई। एक गोली में बाबू ढेर हुआ, एक में मुत्तू और एक में डांगुराव। भीम को देखकर कैप्टन की ओर इशारा करता है और एक गोली लगी कुमरन के सीने में। भीम वहीं गिर पड़ा धरती पर। फिर हुई गोलियों की बौछार। भय था सभी को कि कहीं वापस ना आ जाए भीम, इसलिए तो उसकी चिता वहीं जला दी जंगलों में। फिर बदले की लपट उठी, वो वापस आएगा। जन जन से आवाज उठी, Everyone has the right to live. Everyone has the right to breathe. How long can a person suppress hunger? How long can a person tolerate oppression? There is a limit. Then nothing saves except revolution. Regardless of whether history or future generations will consider him guilty for the death of his people or a hero who fought for them. इससे बुरी गुलामी है, संघर्षों का ये ताना बाना। उठना है, चल देना है, सब कुछ सहते आए हैं, दुर्गार हमेशा पाए। बनती भीतर चिंगारी, इंसाफ भीतर बनमा है। जुल्मों से मन ऊब चुका, जन का स्वाद निराला है। जुल्मों से मन ऊब चुका, जन का स्वाद निराला है। सांस अगर अब लेनी तो अंदर की आग जरूरी है। रुको कर बन जाओ, ये भूतने से हम ठीक नहीं। रुको कर बन जाओ, ये भूतने से हम ठीक नहीं। अगले बार फिर से जियो, हर सांस यहाँ जरूरी